So we are talking about income tax authorities Okay, so we are talking about income tax authorities. We have also spoken about it when we were in intermediate, but let us revise it one more time. कोई problem नहीं है. Sir, income tax authority is the central government authority. So I always start with the central government. Central government. अब central government में so there are a lot of ministries, Ministry of Railway, Ministry of Finance. तो sir ये जो है something wrong about my yeah. So central government में बहुत सारी ministries आती है. तो sir which ministry will be looking after income tax related provisions? So that is Ministry of Finance. Ministry of Finance. Ministry of Finance में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, सर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. सो उसमें एग्जैक्टली विच डिपार्टमेंट? सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हेड होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो हेड होता है दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, ये ऐसे उनकी पोजीशंस होती है. Under Department of Revenue, they are having two boards, CBDT and CBEC. So Central Board of Indirect Taxes and Custom, okay, and CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Custom, that we will discuss in indirect tax. Here we are going to talk about CBDT. CBDT is the Central Board of Direct Tax. Central Board of Direct Tax. This is the admin authority. This is the admin authority of Income Tax Department. The moment we say circulars are issued by CBDT, the circular is issued by board, the rules are framed by the board, the suggestion is given by the board. Board मतलब यहाँ पे CBDT, Central Board of Direct Taxes, which regulates the provisions of income tax law and on day-to-day basis in a practical world. Now CBDT के अंदर बहुत सारे officers का appointment होता है. We are going to talk about three wings of income tax department: assessment wing, investigation wing, and appeal wing. ठीक है ना, there are three wings of the department: assessment wing, investigation wing, and appeal wing. If somebody is having network issue, please log out and log in again. या तीन विंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के: assessment wing, investigation wing, and appeal wing. I am talking about assessment wing right now. Okay, right now I am talking about assessment wing. Sir, assessment wing की बातें अभी कर लेते हैं. Okay, if you remember assessment wing, remembering investigation wing will not be a difficult task for you guys. So CBDT के अंदर सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है that is Chief Commissioner of Income Tax. Okay, Chief Commissioner of Income Tax is the senior most officer of the Income Tax Department. सबसे बड़े ऑफिसर्स माने जाते हैं इनको. Is like a grandfather of income tax department. But chief commissioner of income tax के बीच में भी एक दूसरे के बीच में भी कंपटीशन होता है, who is the senior and who is junior. तो इन लोगों के बीच में जो सीनियर मोस्ट हो जाते हैं उनका पोजीशन चेंज करने का टाइम आ चुका था. तो डिपार्टमेंट हैव क्रिएटेड वन मोर पोजीशन. तो उस एक्स्ट्रा पोजीशन का नाम है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. जरा समझो, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में पावर वाइज देयर इज नो डिफरेंस. All the work that can be done by the chief commissioner of income tax can also be done by principal chief commissioner of income tax and vice versa, meaning thereby in income tax the power, whatever power is given to chief commissioner is also given to principal chief commissioner. This is what you should remember. In दोनों का power same ही है. Therefore some faculty they also write like this: principal chief commissioner of income tax or chief commissioner of income tax. This is also right because their powers in income tax department is same. ठीक है ना, ये पावर सेम होने की वजह से ऐसे लिखा जाता है. नाउ सेकेंड वन, ये फैन बंद करने बोल देना. नाउ द नेक्स्ट वन इज, सर चीफ कमिश्नर के अंडर यूजुअली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स शुड बी द पोस्ट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बट सीनियर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, तो अभी तक यहां तक जितने लोग हैं उनको बाय हार्ट करने का ट्राई करते हैं. द फर्स्ट पोजीशन इज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. अंडर द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यू आर हैविंग चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. अंडर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स you are having principal commissioner of income tax. Under principal commissioner of income tax you are having commissioner of income tax. टेक्निकली हमने दो ही पोस्ट की बात की, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर. हमने कितने लोगों की बात की? दो ही लोगों की, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर. खाली मैं क्या बता रहा हूं, जो सीनियर कमिश्नर होता है उसको प्रिंसिपल कमिश्नर बोलो, जो सीनियर चीफ कमिश्नर होता है उसको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बोलो. एम आई क्लियर विद दिस फोर पोजीशन? ए प्लीज एक्नॉलेज. विल यू प्लीज रिमेंबर द पोजीशन ऑफ दिस फोर कमिश्नर्स? हेलो, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के अंडर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर के अंडर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड उसके अंडर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. इज इट क्लियर? ये चार पोजीशन क्लियर हो गए माइंड में? हु इज द सीनियर? ओके, तो ये चार हो गए. तो आगे चलते, इसके आगे का सीरीज जो है ना वो सिंपल है, वो आप लोगों ने याद भी रखा होगा शायद. चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन आता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. When I say additional commissioner of income tax, additional commissioner is not a mandatory post. जरूरी नहीं कि ये होना ही चाहिए, ये होता भी है और ये नहीं भी होता. That depends on the government कि इनको रखना है कि नहीं रखना है. बट उसके अंडर का पोजीशन जो होता है वो होता ही है, डेफिनेटली होता है. एंड दैट इज जेसी. जेसी इज द जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. जॉइंट कमिश्नर के अंडर होते हैं एसीडीसी. एसीडीसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर. सर अब इन दोनों को साथ में क्यों रखते हो? क्योंकि इन दोनों के पावर भी सेम ही है, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. और उसके नीचे जो होता है वो होता है आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर. इतना तो आप लोगों को पता होगा, तो जल्दी 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 बोलो. चलो याद रखने का ट्राई करो. प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एसीडीसी, आईटीओ. ठीक है ना, इतनी बात हो गई. इतना याद रख लिया आप लोगों ने? हेलो, आईटीओ तक का तो याद रखना पड़ेगा आपको. चलो बता दो, फटाफट बता दो. आप ही बता दो मुझे, अभी मैं यहाँ पे नया पेज बना रहा हूं. बता दो. चलो, सीबीडीटी के अंदर सबसे पहला ऑफिसर कौन आता है? आप लोग बताओ. विद द फर्स्ट ऑफिसर, यू राइट इट हियर, देन आई विल राइट इन माय नोट्स. विद द फर्स्ट ऑफिसर, जल्दी बोलो. बोलो. फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट अ शॉर्ट फॉर्म. या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. द नेक्स्ट ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. नेक्स्ट ऑफिसर सीसीआईटी. सीसीआईटी मीन सर पीसीसीआईटी के बाद सीसीआईटी, दे आर चीफ कमिश्नर्स. तो ये चीफ कमिश्नर्स हो गए. द नेक्स्ट ऑफिसर इज, come on please. Sir, usually commissioner of income tax, but senior commissioner is principal commissioner of income tax. Very good. Next one, fourth position. Next one, so CIT. So CIT, commissioner of income tax. Commissioner of income tax. The next officer. Next officer. Next officer, principal chief commissioner,
प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ये तो 4 बड़े बड़े कमिश्नर हो गए। वेरी गुड ऋतुजा। एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, very good, you can write the short phrase, I can understand that. sixth one next कौन होता है? ये पक्का होता है जेसी, इसका रोल बहुत ज्यादा है पेनाल्टी चैप्टर में ज्वाइंट कमिश्नर का, सो यू शुड नो हिज पोजीशन। जेसी यहाँ पे होता है, ओके, ज्वाइंट कमिश्नर। देन नेक्स्ट ऑफिसर एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, ओके। द नेक्स्ट ऑफिसर इज, एथ ऑफिसर इज आईटीओ, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, ठीक है ना, यहां तक तो आप लोगों को पता ही था। इसके आगे इंस्पेक्टर होता है, ठीक है ना, इसके आगे एक होता है इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर के नीचे होता है टीआरओ, लेकिन उसका अभी इतना रोल है नहीं, इंस्पेक्टर और टीआरओ का रोल है नहीं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो हमारा फोकस आईटीओ तक रहना चाहिए। हु इज आईटीओ, इतना तो आपको पता होना चाहिए। नाउ यू शुड नो कि इनकम टैक्स में हम ना ऑफिसर्स को आईटीओ, जेसी, एसी ऐसा नहीं बात करते, वी ऑलवेज कॉल देम एओ। हम उनको क्या बुलाते हैं? एओ, असेसिंग ऑफिसर। तो इसमें से सर असेसिंग ऑफिसर कौन कौन है? हु ऑल आर द असेसिंग ऑफिसर? ये असेसिंग ऑफिसर किसको बोलेंगे? तो ये वाला आईटीओ वाला बंदा है ना, ही इज द असेसिंग ऑफिसर, डेफिनेटली द असेसिंग ऑफिसर। अपार्ट फ्रॉम हिम एसीडीसी, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये लोग भी ये भी असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। जेसी और एडिशनल कमिश्नर नॉर्मली एओ नहीं होते, दे आर नॉट एओ, लेकिन सीबीडीटी के पास पावर है टू मेक देम आल्सो एज ए एओ। तो सीबीडीटी ने डायरेक्ट किया होगा तो ही एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर एज ए एओ एक्ट करेंगे। अदरवाइज इन दिस हायरार्की यू आर हैविंग ओनली 3 एओज। अभी तक तुम्हारे पास खाली 3 एओ है, दैट इज एसी, डीसी एंड आईटीओ। इतना याद रख लो कि ये दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट लिस्ट, दिस लिस्ट इज एन इनकम्प्लीट लिस्ट, बट विल यू प्लीज रिमेंबर दिस। तो हु इज एओ? एओ अगर मैं पूछता हूं इतने लिस्ट में, अगर मैं इतना ही लिस्ट आपके सामने लिखता हूं, आउट ऑफ दिस who will be the AO? तो AO will be AC, assistant commissioner, deputy commissioner and ITO. sir AO कौन होता है? AO is the person who passes assessment order against the assessee. assessee का जो ऑर्डर पास करने वाला ऑफिसर होता है, that is known as AO. तो सर ये बाकी लोग क्या करते हैं बाबा? ऑफिस में ऑर्डर पास करके करना छोड़ के देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ना, अप्रूवल देना है, रजिस्ट्रेशन देना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, एक्शन लेना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, अपॉइंटमेंट करना है, इंटरव्यू लेने हैं, हायर करना है, फायर करना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये ऑफिसर बाकी सारा काम हैंडल करते हैं। ऑर्डर पास करने का जो काम होता है वो एसी, डीसी एंड आईटीओ के पास ही होता है। ओनली दीज आर द ऑफिसर हु कैन पास द ऑर्डर। अभी तक ये लिस्ट बढ़ेगा, एओ का लिस्ट भी बढ़ेगा, बट एज ऑफ नाउ आई होप यू शुड नो कि ये 3 लोगों को हम लोग एओ बुलाते हैं, इतने ही लोगों को। ओनली 3 असेसिंग ऑफिसर्स आर देयर ऑन माय बोर्ड राइट नाउ। इज इट क्लियर? एओ कौन है वो क्लियर हो गया क्या? जल्दी बोलो। जितना मेरे बोर्ड पे अभी एओ में कौन कौन आता है? एसी, डीसी एंड आईटीओ। इज इट क्लियर? एओ कौन कौन होता है? एसी, डीसी एंड आईटीओ। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए इसका। एओ कौन है पता है ना आप लोगों को? असेसिंग ऑफिसर हु पासेस एन असेसमेंट ऑर्डर, जिसके साथ एसएससी इंटरेक्ट करता है। तो अभी की लिस्ट में से कौन कौन एओ है? एसी, डीसी एंड आईटीओ, these are the AOs. is it clear? याद रख लोगे क्या? इतना थोड़ा थोड़ा याद रखो, ये मैं बहुत आगे के चैप्टर का भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, एडवांस चैप्टर में से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आपके सिलेबस में ये आता है, कहाँ पे आपके सिलेबस में ये आता है? बहुत आगे आएगा किधर तो, ये देखो, दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 13, इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये वाला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। आई एम टीचिंग यू टेक्निकली चैप्टर नंबर 13, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। पेज नंबर 255 पे देखता हूँ। ये देखो, ये हैव यू रिसीव मॉड्यूल आ गया आप लोगों के पास? स्टडी मटेरियल नहीं, ओके। तो तब तक सॉफ्ट कॉपी में से पढ़ लेते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
देखो तो यहाँ पे स्टार्ट कहां से होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1961। तो ये सबसे टॉप ऑफिसर्स को उन्होंने बोल दिया कि सबसे टॉप बॉडी, दिस इज द बॉडी विच मैनेजेस ऑल द ऑफिसर्स। फिर उन्होंने क्या बोला, डायरेक्टर छोड़ दो इस साइड का, ठीक है ना, इधर ध्यान दो, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना, ये देखो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये अपील वाला अलग है, ठीक है ना, उसकी बात अभी मैंने की नहीं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना, देखो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर्स आईटीओ, उसके बाद टीआरओ एंड इंस्पेक्टर्स। तो ये सारे लोगों का उन्होंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इतने सारे लोग क्या होते हैं, आपके ऑफिसर्स होते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनको आईटीए बोलते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलते हैं। लेकिन ये सारे के सारे एओ नहीं होते, इसमें के कुछ ही लोग एओ होते हैं, उनका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया सेक्शन 27A में, असेसिंग ऑफिसर्स, वो मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, लेकिन उसके लिए मुझे आपको ये डायरेक्टर लोग कौन होते हैं वो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली दो विंग होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दो विंग होती है, असेसमेंट विंग एंड इन्वेस्टिगेशन विंग। सर इन्वेस्टिगेशन विंग मतलब क्या, जो लोग इनकम टैक्स के इवेडर्स को फाइंड आउट करते रहते हैं, डे एंड नाइट दे आर एक्टिव। वो होता है ना ईडी या सीबीआई वाले जैसे लोग होते हैं ना, सीक्रेट एजेंसी जैसे काम करते हैं, वैसे दिस आर द इन्वेस्टिगेशन विंग। इनका काम जो होता है वो इनकम टैक्स इवेडर्स को फाइंड आउट करना होता है। दे आर हिडन पीपल, उसके साथ यूजुअली यू डोंट इंटरेक्ट, वी डोंट इंटरेक्ट विद देम, वी इंटरेक्ट विद द असेसमेंट विंग पीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कौन कौन रखा हुआ है, अभी याद कैसे रखना है, देखो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लेवल का जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन विंग में होता है उनको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। सुनो सुनो, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का जो लेवल का बंदा होता है यहाँ पे, उसका नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लेवल का जो बंदा होता है उसका नाम होता है डीआईटी, ठीक है ना, डीजीआईटी एंड डीआईटी। ये दो पोजीशन आपको समझ में आ गई क्या, किधर है। चीफ कमिश्नर के सामने जो बंदा है इन्वेस्टिगेशन विंग में सेम पोजीशन पे, उसका नाम है डीजीआईटी, और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने जो बंदा है उसका नाम है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डीआईटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स एंड डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इज इट क्लियर, ये इनके सामने वाले क्लियर हो गए, कौन कौन होते हैं, हेलो प्लीज बोलो, इज इट क्लियर। दो पोजीशन मैंने अभी बताई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन विंग की, ओके। अब सीनियर मोस्ट डीजीआईटी, अब डीजीआईटी में भी तो अलग अलग पावर है ना यार, डीजीआईटी इज आल्सो हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स। यार ये डीजीआईटी में सर ये सीनियर ऑफिसर्स भी तो होंगे, तो हमने बोला यस यस डीजीआईटी, अगर डीजीआईटी में सीनियर जूनियर का प्रॉब्लम अगर हो रहा है इनकम टैक्स को, तो इनकम टैक्स क्या करेगा, जल्दी बोलो, इनकम टैक्स क्या करेगा, ये जो इसमें से सीनियर लोग होंगे उनको प्रिंसिपल के नाम से अपॉइंट कर देगा। तो पीडीजीआईटी, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। तो ये जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उसके आगे प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे होता है। तो इनका विंग कहां से चालू होता है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के नीचे आता है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और उसके नीचे आता है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। हमने तो यहाँ पे 4 पोजीशन की बात की, बट लेकिन हमने बात 2 ही लोगों की, एक डीजी की बात की और डीजी के नीचे डायरेक्टर की बात की। डीजी और डी 2 ही लोग हैं यहाँ पे, देखने जाएंगे तो डीजी का सीनियर पीडीजी, ठीक है ना, और डी का सीनियर पीडी, तो ऐसे 4 ऑफिसर हो जाते हैं। इजी टू रिमेंबर, जल्दी बोलो, याद रख लोगे ये क्या मैंने बोला अभी यहाँ पे, डीजी और डी दो ही लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर सर, और उसमें का जो सीनियर होगा वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर। इनकम टैक्स तो हर जगह पे लगाना पड़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है। कौन सा डीजी वो आपको पता होना चाहिए ना, डीजी पुलिस की तो ना, क्या बात करें हम, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स की बात करें, ओके सर। इसके आगे के पोजीशन सारे सेम है, खाली कमिश्नर को डायरेक्टर से रिप्लेस कर दो। सर यहाँ पे क्या है, एडिशनल कमिश्नर, तो उसके सामने होगा एडिशनल डायरेक्टर, यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर, यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर तो असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर के सामने डेप्यूटी डायरेक्टर। क्लियर है। इफ यू रिमेंबर दिस असेसमेंट विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग इज जस्ट द रेप्लिका, कमिश्नर हटा दो और उसके जगह पे डायरेक्टर डाल दो। इज इट क्लियर। और क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन विंग है, यहाँ पे आईटी वगैरह होता नहीं, इसका इधर ही खत्म हो जाता है, दिस विंग विल एंड हियर ओनली। बोलो ये याद हो जाएगा क्या, तुम्हारे बुक में का एक सिलेबस मैंने पढ़ा दिया अभी, ठीक है ना,
तो अभी इनका नाम पढ़ लेता हूं, आपके मॉड्यूल में से भी पढ़ लेता हूं, तो आपको मतलब तसल्ली होगी कि हमारे मॉड्यूल में किधर तो लिखा है, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा मैं। तो सबसे सीनियर ऑफिसर जो होता है इन्वेस्टिगेशन विंग में, उसका नाम है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। उनके अंडर होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उनके अंडर होते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उनके अंडर होते हैं डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स। डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इतना होता है। यहां तक क्लियर है? हाँ चलो यहां तक क्लियर है। तो आगे क्या सर, अभी एओ कौन होगा? तो एओ वो लोग होंगे, यहां पे ध्यान दो, एओ वो लोग होंगे जो इनके पोजीशन पे आते हैं। अब आईटीओ के सामने तो कोई है ही नहीं, तो आईटीओ एओ होता है, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। एसीडीसी के सामने जो भी लोग है ना, वो भी एओ है। तो एसीडीसी के सामने एडिशनल डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर भी है और डेप्यूटी डायरेक्टर भी है। तो एओ कितने हो गए अभी सर? एओ हो गए 5, ठीक है ना, देयर आर 5 एओज, ठीक है ना। तो एओ का एक्चुअल डेफिनेशन में कौन कौन आता है सर? एओ के एक्चुअल डेफिनेशन में आता है एसी, डीसी प्लस आईटीओ, ये तीन तो लोग पहले से आते थे, अभी एडी और डीडी भी आएगा। तो टोटल 5 पीपल आर देयर इन द डेफिनेशन ऑफ एओ। डेफिनेशन ऑफ एओ बाय हार्ट हो जाएगा। देयर आर 5 ऑफिसर्स इन द डेफिनेशन ऑफ एओ: एसीडीसी, एडीडीडी एंड आईटीओ। एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर्स एंड आईटीओ, इन पांचों को मिला के एओ बनता है, असेसिंग ऑफिसर। इज इट क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट आज के दिन का पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ना है आप लोगों को कि एओ कौन है, हु इज माय एओ, क्योंकि हम असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑफिसर्स एंड देयर पोजीशन की यहाँ पे कौन है। Now sometimes the case is very big, like Harshad Mehta case, like Reliance ka case, like Adani's ka case. The case is very big and we cannot assign the smaller officer or junior officers on the particular case. So CBDT is powered, CBDT is having power. क्या power sir? इनके जो सीनियर होते, इनके सीनियर कौन? जॉइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। प्लीज अंडरस्टैंड, सीबीडीटी के पास पावर है। क्या पावर है सर सीबीडीटी के पास? इनके जो सीनियर होते हैं, ठीक है ना, इनके सीनियर कौन है? मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, इनको भी एओ बनाया जा सकता है। सर अगर एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को अगर एओ बनाया गया तो उनके जो इन्वेस्टिगेशन विंग के लोग होते हैं उनको भी तो लिया जा सकता है। हाँ सर, तो एडिशनल डायरेक्टर एंड ज्वाइंट डायरेक्टर ये बैकअप में होते हैं, वो सीबीडीटी डायरेक्ट करेगा तो ये लोग एओ करके एक्ट करते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट एओ। बाय डिफॉल्ट ओनली 5 ऑफिसर्स आर ट्रीटेड एज एओ। इफ सीबीडीटी डायरेक्ट्स देम टू एक्ट एज एन एओ, इसमें से किसी भी को अगर कोई स्पेशल केस ओपन होता है, देन ओनली दे कैन एक्ट एज एओ। ये मैंने एकदम समरी नोट्स में एकदम हल्के से यहाँ पे लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स में आप देख सकते हो। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एओ के यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, हु इज असेसिंग ऑफिसर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, जनरली बाय डिफॉल्ट हु इज एओ? असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर और आईटीओ, ये 5 लोगों को मिलके एओ बनता है। अगर सीबीडीटी का डायरेक्शन आया, इफ डायरेक्टेड बाय सीबीडीटी एंड ओनली इफ डायरेक्टेड बाय सीबीडीटी, देन ओनली एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर और ज्वाइंट डायरेक्टर, ये लोग भी एओ करके एक्टिंग कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज ए एओ। जल्दी बोलो, क्या एओ का डेफिनेशन बाय हार्ट हो गया? इसका ये मतलब है कि मैक्स टू मैक्स यहां तक एओ हो सकता है, यहां तक सबको मिला के मैक्सिमम यहां तक एओ हो सकता है। बोलो क्लियर है? और उसमें भी ये लोग बाय डिफॉल्ट होते हैं, ये रहे तुम्हारे बाय डिफॉल्ट है। बोलो बोलो क्लियर है क्या? ये दोनों बैकअप में रखे गए, इन लोगों को, इन चारों को बैकअप में रखा गया। ये बोलो, रिप्लाई करो, एक दो रिप्लाई आए मुझको खाली। शुड आई गो अहेड? कोई डाउट वगैरह होगा तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन।
ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। आगे चलते हैं। Now let's talk about certain assessment procedure related aspect. When we talk about assessment procedure मतलब exactly क्या होता है? Okay, तो whole income tax department का initiation कैसे होता है? So you should always identify your assessee. You should always start with the legal status. हम लोग ऐसे start करते हैं. What is the legal status of the assessee? This is how you start. So what do you mean by legal status? It can be individual, ठीक है ना? Legal status में क्या क्या आता है? Legal status में सर individual, HUF, AOP, BOI, company, LLP, firm. These are the legal status. Okay. Once you are clear about your legal status of the assessee, you should always ask the second most important question. तेरा टाइम खत्म हो गया क्या? नहीं, 9 o'clock है ना? इधर ये नोट आया, इसका टाइम खत्म हुआ है। लीगल स्टेटस, ठीक है ना? सुनो सुनो फटाफट, लॉग आउट होने वाला है 9-10 मिनट में। जब लॉग आउट हो जाएगा ना, टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक एंड देन ज्वाइन, ठीक है ना? बिकॉज ऑलरेडी हमारा मोर देन हाफ ऑफ लेक्चर इज कवर्ड। तो व्हेन आफ्टर लॉग आउट, अभी इमीडिएटली नहीं, अलाउ मी टू टीच फॉर अनदर 9 मिनट्स, आफ्टर दैट 5 मिनट्स का ब्रेक एंड देन यू ज्वाइन। लीगल स्टेटस के बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू नो द रेसिडेंशियल स्टेटस। Lot of amendment has happened in the residential status. Obviously, when I start international taxation, I'll be teaching you residential status chapter as well. So this is the second important aspect. ठीक है ना? Second important aspect, residential status. A residential status can be a resident or a non-resident, और उसके अंदर भी ordinary resident and non-ordinary resident can be a possibility for individual and HUF. चलो जाने दो। तो legal status, then residential status. This is the second stage. Once you are clear about the residential status of the assessee, you should know the scope of total income of the assessee. The scope of total income of the assessee, which includes Indian income or foreign income. Sir, only Indian income is taxable or also foreign income is taxable, or which income is taxable and which income is not taxable? That depends upon the residential status of the assessee. ये सब बचपन की बातें कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। So first we identify legal status of the assessee, then we identify the residential status of the assessee, then according to that we determine the scope of total income of the assessee. Once we have scope of total income in our hand, we have to compute the income, और compute करने के लिए we are having 5 heads of income. We are having 5 heads of income. In 5 heads of income, we are having income from salary as the first head, income from salary, income from house property, income under the head PGBP, income under the head capital gain, income under the head IFOS. So there are 5 heads of income that we are having in our syllabus. So once you apply the heads of income, and not only heads of income, after that you have to apply क्लबिंग ऑफ इनकम। सर क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब एंटी टैक्स इवेजन। क्लबिंग ऑफ इनकम हम कब करते हैं? जब कोई अपना इनकम किसी और के नाम पे ट्रांसफर करता है, एंड व्हेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टैक्स प्लानिंग, जैसे हस्बैंड अपना इनकम अपनी वाइफ के नाम पे या बच्चों के नाम पे बुक करता है, तो देयर विल बी अ क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम के साथ साथ यू नीड टू नो एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम मींस वो ब्लैक मनी आपके पास होना, 68, 69, 69A, 69B, वो सारे सेक्शन एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एंड आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ इनकम यू शुड नो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दिस इज अनदर चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होने के बाद यू विल रीच टू GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। इतना सब करने के बाद you get a gross total income, and from gross total income you have to give deduction under chapter 6A. You have to provide deduction under chapter 6A. Lot of deduction, ATC, ATD, ATU. Not only that, there are so many, you know that ATCCC, ATCCD, बहुत सारे हैं, ठीक है ना? Let's not go into that. But chapter 6A deductions you will provide. After providing chapter 6A deductions, you will get a total income.
you'll get total income and this is the total income which is chargeable under income tax law. ठीक है, तो ये टोटल इनकम जो होता है ना, इसके ऊपर हमें अप्लाई करना होता है टैक्स रेट. We have to apply tax rate. Now there are two types of tax rate we have in income tax law. Two types of tax rate, and you know that there are two types of tax rate: normal rates of tax and special rates of tax. Normal rates of tax जो होता है वो फिनांस एक्ट में से मिलता है, and for your syllabus finance act 2020 is applicable, and special rates of tax are given in income tax act 1961 itself. तो लॉटरी के ऊपर 30% होता है, that is the special income special rate of tax. Long term capital gain 20% special income special rate of tax. Share market short term capital gain 15% special income special rate of tax. Salary, house property, PGBP up to 2.5 lakh, nil 2.5 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, about 10 lakh 30%, you know that. तो वो normal rates of tax होते हैं जो normal income के ऊपर apply होते हैं. इतना करने के बाद तुम्हारे हाथ में आ जाता है tax amount. You have to pay tax. So to pay tax you use different pay tax or recover tax. ठीक है ना, you use different means of the payments. One is TDS, another one is a TCS. These are the ways through which income tax department recover the tax: TDS, TCS, advance tax. Then there is a self-assessment tax, SA tax. All these are the modes of recovery. Sir, इतना सब tax भी भर दिया. Now what I should do? Now you should filing of ROI. यहाँ से assessment procedure चालू होता है. Filing of ROI is the beginning of the assessment procedure. ये first chapter है filing of ROI. इंटरनेट लॉग आउट हो गया था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर. तो इसके पहले जो हुआ था ना, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. ऑल दिस प्रोसीडिंग्स आर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बिगिंस हियर. ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट्स, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स लॉट ऑफ थिंग हैपेंस. सर लॉट ऑफ थिंग मतलब वो भी बता दो लॉट ऑफ थिंग्स में क्या क्या आता है. Okay, I'll just give you the brief idea, not the detailed one. Detailed one we will discuss later on. When you file ROI, after filing ROI, now department may want some additional information from you. For that they may set up an inquiry. ठीक है ना, डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, इंक्वायरी. और इंक्वायरी के लिए डिपार्टमेंट नोटिस देता है आपको कि हमसे आपसे बात करनी है, वी वांट सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू. दैट नोटिस कैन बी इशूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1. 142 सबसेक्शन 1. यहाँ पे नोटिस आता है, दैट नोटिस इज कॉल्ड एज द राय नोटिस, RAI नोटिस, राय नोटिस. तो ये नोटिस आ सकता है. सर इसके अलावा डिपार्टमेंट कैन सेंड यू स्क्रूटिनी नोटिस. स्क्रूटिनी नोटिस मतलब डिपार्टमेंट आपको ऑफिस में बुला सकता है. ओके, दे कैन कॉल अप इन द ऑफिस. पहले फिजिकली जाना पड़ता था, अभी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज फेसलेस, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है. तो सर द अनदर नोटिस इज स्क्रूटिनी नोटिस. स्क्रूटिनी नोटिस, यहाँ पे डिपार्टमेंट आप लोगों से इंटरेक्ट करता है. सर व्हाट इफ आई डोंट फाइल ROI, व्हाट इफ आई डोंट reply to the notice, what if I don't go for scrutiny, which happens under 143(2). ये नोटिस 143(2) में आता है. So what if I don't respond, तो डिपार्टमेंट आपका 144 कर सकता है. नोटिस 144, तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, ऐसा कुछ वर्डिंग्स है, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट वगैरह. तो दिस इज ऑल्सो एन असेसमेंट. स्क्रूटिनी असेसमेंट इज एन असेसमेंट. तो ऐसे कुछ असेसमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में. ये सारा करने के बाद सर इनकम टैक्स में और एक असेसमेंट होता है विच इज नोन एज 147. इसका नाम है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. भयानक असेसमेंट है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका मैटर ओपन कर सकता है फॉर लास्ट 4 years, मे बी लास्ट 6 years, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते रहोगे तो लास्ट 16 years. इतने साल का असेसमेंट ओपन हो सकता है 147 में. भयानक असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट.
So Baja is another assessment, 144 का assessment, 147 का assessment, 143 का assessment. तो there are these 3 assessment that I taught you till now. मैंने बता दिया आपको, हिंट दे रहा हूं खाली, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं रहा मैं आप लोगों को. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ओवरऑल ब्रीफ आइडिया. और आपने अगर वो रेड वाला मूवी देखा होगा अजय देवगन का, तो उसमें जो रेड होता है और रेड में जो असेट्स मिलते हैं, गोल्ड, प्रॉपर्टी पेपर्स, बहुत सारा कैश, ओके, उसका नॉर्मल असेसमेंट नहीं होता, उसका स्पेशल असेसमेंट होता है. सो वी कॉल इट सेक्शन 153 का असेसमेंट. सेक्शन 153 ए का असेसमेंट सर्च केसेस में ये होता है. सर्च मतलब रेड वाली केसेस में ये असेसमेंट होता है. सो टेक्निकली यू नीड टू रिमेंबर इन लॉन्गर टर्म, यू नीड टू रिमेंबर कि 4 सेक्शन में असेसमेंट हो सकता है एसएससी का. 143 में, ठीक है ना, 144 में, 147 में एंड 153 ए में. सर असेसमेंट होने के बाद डिपार्टमेंट